तू भी सामने आ जा बेटा, इधर आ जा, इधर आ जा। ওকে স্টুডেন্টস, গুড মর্নিং। সামনে আসতে কি অসুবিধা হয়েছে? এখানে বস না। হ্যাঁ, বেঞ্চ নিচু? ও, তাও বসে বস। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। Let's start the discussion today. अच्छा, last day we discussed about the origin of life, है ना? तो origin of life के ऊपर चर्चा किया था। आज हम लोग बात करेंगे regarding the evidences of evolution। तो the basic second important segment of this chapter is evidences of evolution. So we will initiate with the discussion on evidence of evolution। है तो? हाँ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। पास्तूर, हाँ, neck of flask into a আর কি আছে? next हाँ, first aid, pulled out the neck of a flask into a tube, actually into a swan neck tube। swan neck tube was important। अगर swan neck नहीं होता तो क्या होता? accumulation of the organisms नहीं होता। swan neck was important क्योंकि वो जो swan neck है, इसके इस जगह पे हो रहा है, accumulation क्यों हुआ? due to the peculiarity of this neck of the tube। हाँ, that उसको neck को उठा के ऐसे कर दिया। so that was the, नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्युमुलेट कहां से होगा, है ना? चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं रिगार्डिंग द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। এটা ক্যামেরাটাকে এইভাবে সেট করে কেন আমি বুঝি না তো এরা। तो नेक, अच्छा, am I audible to everyone my dear? Am I audible to everyone? yes or no बता दे जल्दी। अरे यार, हाँ यस सर, ठीक है। सुजीता, क्लास के बाद मुझे एक बार, हाँ, माइक ही ऑफ, माइक्रोफोन ऑफ, सभी को ये करना पड़ेगा। रुक जा। পরমব্রত, আজকে পরীক্ষা নেই স্যার? কালকে আছে ফিজিক্স। তো শেষ হচ্ছে কবে রে? হায়ার সেকেন্ডারি তো নাকি? 23 তারিখ আমার প্রোগ্রাম আছে ওখানে। হ্যাঁ স্যার, ওই মোহিত স্যার বলেছিলেন 23 तारीख में जाऊँ। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर लॉट मेनी एविडेंसेस टू टॉक ऑफ। ठीक है, प्रथम হচ্ছে the first evidence is the paleontological evidence of evolution। সবাই তোমরা জানো, लेकिन इसके बारे में कुछ चीज बताना है। 2016 में क्वेश्चन आया था, उसके बाद बहुत दिन इससे क्वेश्चन नहीं आया। मैं बताऊंगा, फॉसिल के ऊपर क्वेश्चन है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस 2016 के बाद नहीं आया इसमें। 2016 फर्स्ट मे का पेपर में आया था। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। नंबर 2, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एवरी वन ऑफ यू नो अबाउट दिस। 2020 তে এসেছিল एम्ब्रियोलॉजिक एविडेंस, 2020 का पेपर में आया था एम्ब्रियोलॉजिक एविडेंस। नंबर 3, evidences based on homology। evidences based on homology। Number 4, evidences based on analogy। Number 5, evidences based on vestigial organs। Number 6, evidences based on what is that called? Connecting links। evidences based on connecting links। Number 7, anthropogenic evidence of evolution। anthropogenic evidence, every one of you know about this, anthropogenic evidence of evolution। পরমত লাস্ট দিনের পরীক্ষাটার নাম্বারটা কম হলো কেন? সৃজিতা, কম হলো কেন নাম্বার? anthropogenic evidence of evolution। अच्छा, एक सेकंड। anthropogenic evidence of evolution, evidences based on
এভিডেন্সেস আরো আছে অনেকগুলো, পরে আস্তে আস্তে হবে। বেসড অন कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में बात करनी है माय डियर। अभी इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पैलेंटोलॉजिकल, मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन अगर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है, तो पैलेंटोलॉजी के ऊपर बात करनी है। पैलेंटोलॉजी, इसके ऊपर बात करनी है। व्हाट इज पैलेंटोलॉजी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल। मैं जितना बोलूंगा उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। যতটা বলছি অতটাই পড়বে, বেশি পড়বে না। पैलेंटोलॉजी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल। Now, how do you define paleontology? I'm sorry. Father of paleontology. Father of paleontology. Anyone who can tell me this? Father of paleontology. Anyone who can tell me this? Father of paleontology. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Next, father of modern paleontology. Modern paleontology. That is George Cuvier. George Cuvier. And number 3 is most important, father of paleontology in India. The answer is Birbal Sahani. Indian scientist, যা যা কন্ট্রিবিউশন এনসিইআরটি তে আছে সমস্ত পড়তে হবে। ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্টের কটা ছবি এনসিইআরটি তে আছে ভলিউম 1 এন্ড ভলিউম 2 মিলিয়ে? How many photographs? Indian scientist. How many photographs online students? जल्दी, इंडियन साइंटिस्ट के कितने फोटोग्राफ्स एनसीईआरटी में है वॉल्यूम 1? इंडियन साइंटिस्ट के कितने फोटोग्राफ्स है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मिला के? जल्दी बोलिए, बोलो बोलो बोलो, কিছুই বলতে পারছিস না স্যার 3 এরম ভাবে না, নাম বলতে চাই, নাম জানতে চেয়েছি, কি কি নাম আছে বল। স্যার একটা রামদেও মিশ্রা আছে, ওই অর্গানিজম মিশ্রা আছে, তারপর আর জিএন রামাচন্দ্রন ভলিউম 1 পেজ নাম্বার 124। ফের স্যার আরেকজন কে? জলদি, पंचानन माहेश्वरी, पी माहेश्वरी আছে? আরেকজন who else? Very sad, this is not expected from you all. Who else? বলতে পারছিস না? expected from you, সেখান থেকে এই বছর কোশ্চেন হতে পারে একটা। এমএন স্বামীনাথন, এমএস স্বামীনাথন, এমএস স্বামীনাথনের কোশ্চেন কি হতে পারে এবার? তোমরা কি জানো লাস্ট ইয়ার 2024 এ भारत रत्न পেয়েছিল फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया? ये तो कॉमन है। एमएस स्वामीनाथन और उसके साथ और एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है उसमें, कौन साइंटिस्ट है? পড়াশোনা ছেড়ে দে তোরা। স্যার নরম্যান বরলগ। আর জিএন রামাচন্দ্রনের সাথে কোন সায়েন্টিস্টের নাম লেখা আছে? লাইনাস পলিং। তো এই যে তোমার এমএস স্বামীনাথন থেকে নিটের কোশ্চেন কি হতে পারে এবার? 2024 he was awarded the Bharat Ratna. Remember this. Am I clear? एमएस स्वामीनाथन बेर करे, माने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मादिकेर पाताय छवि আছে, उसका फोटो निकाल के उसके नीचे लिख देना अवॉर्डेड भारत रत्न in 2024. That can be a probable question. আমি 2024 এ এক্সপেক্ট করেছিলাম কিন্তু আসেনি, হয়তো 25 এ আসতে পারে। আচ্ছা, এনিওয়ে, তো বিরবল সাহানি ইজ দ্য ফাদার অফ প্যালেন্টোলজি ইন ইন্ডিয়া। নো, হোয়াট ইজ ফসিল? फॉसिल, चार्ल्स लियल का डेफिनेशन, ये नाम याद नहीं रखना है आपको, LYELL, चार्ल्स लियल, इनका डेफिनेशन जो है व्हाट इज फॉसिल का, दैट इज इम्प्रिंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स
imprint of organisms on the rock surface. So डेफिनेशन था imprint of organisms on the rock surface. तो rock surface के ऊपर organisms का imprint, that was the definition given by Charles Lyell regarding fossil. बुझते पेरेछो? Now, अगर हम लोग रॉक सरफेस के बारे में बात करा तो टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में भी बात करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट नीट के लिए. क्यों बता रहे हैं कुछ देर में. टाइप्स ऑफ रॉक्स में नंबर 1 आता है सेडिमेंटरी रॉक्स. सेडिमेंटरी रॉक्स. नंबर 2 इग्नियस रॉक. नंबर 3 মেটামরফিক রক. ডেফিনেটলি নামগুলো শোনা আছে তোমাদের. মেটামরফিক রক. 3 টাইপস অফ রকস है ना. सेडिमेंटरी रॉक डेफिनेटली यू पीपल नो फॉर्म बाय द सेडिमेंटेशन इन ओशंस एंड सीज, তাই তো. তো फॉर्म बाय द सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन এটা তো জানো তোমরা, আমি লিখবো না, ঠিক আছে লিখছি. সেডিমেন্টেशन অফ ওশন মানে ইন ওশনস এন্ড সিজ. इन ओशंस एंड सीज, वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट होच्छे, दिस इज द कॉमनेस्ट फॉसिल. कॉमनेस्ट फॉसिल इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ सेडिमेंटरी रॉक, इज फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक. सो कॉमनेस्ट फॉसिल. एमे तो मेन नाम की रे. अच्छा, বাড়ি কোথায়? कॉमनेस्ट फॉसिल. बुझते पेरेছিস? सो इफ दिस इज कॉमनेस्ट फॉसिल, अब देखो इसका एग्जांपल क्या दे सकते हो. एनसीईआरटी में कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है जहां पे सेडिमेंटरी रॉक के बारे में चर्चा है? जल्दी ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी मुखे बोल, আমি দেখ ছববার এসে এসে দেখতে পাচ্ছি না লেখা. जल्दी बोलो. कॉमनेस्ट फॉसिल अगर सेडिमेंटरी रॉक के बारे में बात करा, जल्दी. একটা চর মারবো গালে. ভালো করে দেখ, চোখের সামনে আছে তো লেখা. এভিডেন্সেস অফ এভলিউশন, এমব্রিওলজিক এভিডেন্সের থেকে 4-5 লাইন উপরে ওঠ. কি লেখা আছে? ডাইনোসরের লেখা আছে না सेडिमेंटरी रॉक. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ये क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया. डायनासोर का एविडेंस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या हो गया आप लोगों को? व्हाट हैपेंड टू यू? डायनासोर का एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन कहां मिला है? सेडिमेंटरी रॉक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना. एंड देन अनदर एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन बेस्ड ऑन द सेडिमेंटरी रॉक, क्या है वो? हॉर्स. हॉर्स का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है या नहीं है? हॉर्स एनसीईआरटी में है या नहीं है? किसी जगह पे लिखा है हॉर्स के बारे में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हॉर्स एनसीईआरटी में लिखा है या नहीं है? जा, क्यों कोनो কথা বলে না তো? কি রে, क्या हॉर्स एनसीईआरटी में है या नहीं है? बोलते बच्चे ना. बेटा लास्ट क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन लास्ट, पेज नंबर 142 देखो বা তোমাদের নতুন বই 126. লাস্ট কোশ্চেন কি বলছে? ফর এক্সাম্পল হর্স 2019 এসেছিল, তারপরে হর্সের কোশ্চেন আসেনি. थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है. सो एविडेंस हॉर्स, तो हॉर्स पढ़ना पड़ेगा आपको. याद रखिएगा डायनासोर एंड हॉर्स, ये दोनों कंडीशन ही आपको पढ़ना पड़ेगा सेडिमेंटरी रॉक. समझ में आया? दोनों का ही एविडेंस मिला था सेडिमेंटरी. बहुत सारे हैं लेकिन इन दोनों का मेंशन है एनसीईआरटी में. एनसीईआरटी में हॉर्स का एवोल्यूशन दिया हुआ है, मैं लिखा हुआ है क्वेश्चन, मतलब इसको पढ़ना है आपको. इसी के वजह से हॉर्स एंड डायनासोर दोनों सेडिमेंटरी रॉक के रेफरेंस पे आएगा. Am I clear online? So is it okay? Thumbs up कर दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा, नहीं तो इतना हम देख नहीं पाएंगे. Is it okay for you my dear? Yes sir. हाँ, কথা বলছিস না কেন? কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলে বল পারবো না, সেটাও তো মুখে বল. আমি কবার যাবো আর গিয়ে দেখবো রে बाबा. देख ভালো করে. तो कॉमनेस्ट फॉसिल में क्या क्या 2 एग्जांपल बताया मैंने. वन इज डायनासोर, वन इज हॉर्स. तो डायनासोर के बारे में चर्चा करना पड़ेगा. 130 में है उसका, उसके बारे में कर रहे हैं थोड़ी देर बाद. इग्नियस रॉक सभी को पता है, वोल्केनिक इरप्शंस अगर कूल डाउन करेगा तो इग्नियस रॉक बनेगा, ये तो हर किसी को पता है. इग्नियस रॉक डज नॉट फॉर्म फॉसिल, डज नॉट फॉर्म फॉसिल. বুঝতে পেরেছো? মেটামরফিক রক কি করে আসছে? মেটামরফোসিস দিয়ে আসছে. মেটামরফোসিস का मतलब क्या है? What is this metamorphosis? That is conversion of one kind of rock into another form by change of temperature and pressure. তো মুভমেন্ট অফ টেকটনিক প্লেট, তো প্রেসারের জন্য এবং টেম্পারেচার ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ হওয়ার জন্য এক ধরনের রক কনভার্টস ইনটু অ্যানাদার ফর্ম অফ রক. এম আই ক্লিয়ার? So that is called a metamorphic. It is easily the word metamorphic is there because it's metamorphosis. So conversion of one kind of rock into another form, conversion of one kind of rock into another form by temperature, pressure, etc. समझ में आ गया?
So this is what is called metamorphic rock. A metamorphic rock rarely forms fossil. ठीक है जी, ये हो गया फॉसिल से। ये दोनों का क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, इग्नियस मेटामॉर्फिक से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन सेडिमेंटरी से डेफिनेटली आता है, याद रखिएगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट और एक चीज आपको बता देते हैं माय डियर, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। 2016 नीट में लास्ट पूछा गया था डिफरेंट, हालांकि 2016 में वो नीट नहीं था, पीएमटी था 1 और 2, लेकिन 2016 में पूछा गया था फर्स्ट में का क्वेश्चन पेपर, उसमें फॉसिल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो टाइप्स ऑफ फॉसिल के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, तो टाइप्स ऑफ फॉसिल्स मैं लिखूंगा 6 फॉसिल्स, 6 टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, लेकिन आप लोग उतना पढ़ोगे नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वही सिर्फ पढ़ोगे आप। चलिए, नंबर 1 अनऑल्टर्ड, अनऑल्टर्ड। नंबर 2 पेट्रिफाइड, पेट्रिफाइड, अनऑल्टर्ड पेट्रिफाइड मोल्ड्स, कास्ट्स, प्रिंट्स, कॉप्रोलाइट्स। नहीं करना है इतना, नहीं करना है इतना, मैंने मेंशन किया नाम केवल, और उसमें से केवल 3 पढ़ाएंगे हम। नंबर 1 अनऑल्टर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अनऑल्टर्ड मतलब द एंटायर ऑर्गेनिज्म इज प्रिजर्व्ड अंडर थिक लेयर ऑफ आइस, जेमन वुली मैमोथ्स है ना, मतलब एंटायर ऑर्गेनिज्म इज प्रिजर्व्ड अंडर थिक लेयर, मतलब वो फॉसिलाइज्ड हो गया थिक लेयर ऑफ आइस एंड स्नो के अंदर, है ना, और टोटल बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज प्रिजर्व्ड। एग्जांपल है वुली मैमोथ्स, समझे ना, इसीलिए अनऑल्टर्ड। समझ में आ गया आप लोगों को, मैं लिख नहीं रहा हूं। चलिए, पेट्रिफाइड के बारे में बताएंगे। पेट्रिफाइड क्या है, देखो, द टोटल बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिकम्पोज्ड, द टोटल बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिकम्पोज्ड, लेकिन जहां पे डिकम्पोजिशन हुआ उसी पार्ट में मिनरल डिपॉजिट्स हुआ। एम आई क्लियर? The total organism is decomposed, मतलब the body of the organism is lost and mineral deposits are filling up the space. কি বললাম বুঝতে পেরেছিস? Online students, is it clear? The total organism is decomposed and the minerals are filling the space. That is called petrification. And this is the commonest fossil. এই জন্য বললাম, এই জন্য এটা মনে রাখতে হবে। This is the commonest fossil, my dear. So petrification, the body of the organism is lost. The body of the organism is lost. ঠিক আছে? And minerals fill up the space. Got it? বুঝাতে পারলাম? And this is the commonest fossil. ওটা যেরকম commonest rock, হ্যাঁ, commonest fossil. This is the commonest fossil. And coprolites কি? Coprophagy মানে কি? What is the meaning of coprophagy? Anyone who can tell me this? Dung. Coprophagy মানে feeding on feces. feces खाता है ना, स्टूल खाता है। तो कॉप्रोफैगी माने की, कॉप्रोलाइट मतलब है फॉसिल एविडेंस बेस्ड ऑन द इंटेस्टिनल एक्सक्रीटा। इंटेस्टिनल एक्सक्रीटा हैज बीन फॉसिलाइज्ड। কি বললাম বুঝতে পেরেছো? সেখান থেকে ফিডিং হ্যাবিটস পাওয়া যায়, সেখান থেকে অর্গানিজম হ্যাজ বিন ডিটারমাইন্ড। এম আই ক্লিয়ার? সো ইন্টেস্টিনাল এক্সক্রিটা হ্যাজ বিন ফসিলাইজড। সো ইন্টেস্টিনাল excreta got fossilized। लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। अनऑल्टर्ड मे बी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेट्रिफाइड बिकॉज दैट इज द कॉमनेस्ट फॉसिल। বুঝতে পেরেছো? I have written 6 types of fossil. I don't believe এর বাইরে যেতে পারে কোশ্চেন, বা অনেকে বাতাকে এর বাইরে কোনো কোশ্চেন যাবে না। I don't believe that। ठीक है, चलिए, इज इट ओके माय डियर स्टूडेंट्स? किसी के लिए कोई भी दिक्कत माय डियर इसको लेके? अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे माय डियर। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कशन किया सेडिमेंटरी रॉक्स, और सेडिमेंटरी रॉक्स पे चर्चा करते करते मैंने आपको बताया डायनासोर एंड वी टॉक्ड ऑफ हॉर्स, राइट? अब डायनासोर का एवोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। मैं जिस सीक्वेंस में ये चैप्टर पढ़ाऊंगा उस सीक्वेंस को आप लोग फॉलो कीजिएगा। वो सीक्वेंस फॉलो करोगे तो कोई भी पेज एनसीईआरटी का बचा नहीं रहेगा, गारंटी है मेरा, गारंटी है मेरा। मैं जो बोल रहा हूं उसी सीक्वेंस को आप फॉलो कीजिएगा, व्हाट द सीक्वेंस व्हिच आई एम टेलिंग यू। ठीक है ना? तो अभी एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, यही असली गेम है इस चैप्टर का। तो ये एविडेंस जब हम पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे किस तरह से एनसीईआरटी को निपटाएंगे वो भी आप फॉलो करिए, है ना? तो इसको मैं इरेज करूंगा इसके बाद, ठीक है ना? तो डायनासोर का एविडेंस के बारे में, ठीक है, डायनासोर वाला करवा देते हैं, डायनासोर पहले करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? तो जरा देखिए डायनासोर का एविडेंस है। अच्छा, एक चीज और दिखा देते हैं। देखो, कोई भी किताब का, है ना, जो असली चीज है वो किताब चाहता है कि उसको सबसे पहले दर्शाए सभी को।
যে কোনো বইয়ের যেটা আসলি নিভ সেটাই লোকে চায় সব থেকে বেশি দেখাতে। তোমরা এনসিইআরটির বইটাকে একদম বন্ধ করে দাও, ইফ ইউ ক্যান ক্লোজ দ্য এন্টায়ার বুক, বইটাকে যদি বন্ধ করো, যে ছবিটা তোমরা পাবে সেটা হলো প্ল্যান্ট এভলিউশনের ছবি, তাই তো? একদম লাস্ট পেজে চলে যাও, পেছনের বইয়ের পেছনে একদম কভার, ওখানে দেখো ডাইনোসরের এভলিউশনের ছবি আছে, দেখতে পাচ্ছ? তার মানে ডাইনোসরের এভলিউশন কতটা ইম্পর্টেন্ট এনসিইআরটির কাছে। সো দিস আর वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स माय डियर। तो डायनासोर एवोल्यूशन তোমাদেরকে পড়তে হবে। और डायनासोर के एवोल्यूशन से इस बार भी सवाल पूछा जा सकता है, ABCDEFG ऐसे करके, वो जो कर सकता है वो ये है आपका, क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकता है, ठीक है ना? तो अब देखिए डायनासोर का एवोल्यूशन किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिए। हम लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से, है ना? A B C D E F G, ठीक है? और इसमें मैंने ये मेंशन करा ऐसे करके, वाई डिड आई डू लाइक दिस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात तो ये है डायनासोर। सबसे पहले आपको ये समझना है कि डायनासोर बेसिकली कब आया था, पता है? किसी को पता है डायनासोर किस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में किस पीरियड में आया? एनीवन कैन यू टेल मी? अगर पढ़ाई की हो तभी बोल सकते हो, नहीं तो नहीं बोल सकते, गारंटी है। बोलो। नो सर मेसोजोइक। इज मेसोजोइक का पीरियड माय डियर? सर ट्रायसिक। ट्राइएसिक, वेरी गुड, द आंसर इज ट्राइएसिक, वेरी गुड आंसर माय डियर, द आंसर इज ट्राइएसिक। तो डायनासोर का जो एवोल्यूशन है वो हम लोग ट्राइएसिक में देखेंगे। और याद रखिएगा ट्राइएसिक में डायनासोर भी आता है, मैमल्स भी आता है। डायनासोर और मैमल्स बोथ ट्राइएसिक। डायनासोर डोमिनेट कब करेगा? डोमिनेट द अर्थ जुरासिक, इसीलिए जुरासिक पार्क मूवी का नाम है, ठीक है ना? और डायनासोर का एक्सटिंक्शन कब है? 65 मिलियन ईयर्स अगो। व्हाट इज 65 मिलियन ईयर्स अगो? 65 मिलियन ईयर्स अगो क्या है? क्रिटेशियस। क्रिटेशियस। तो 65 मिलियन ईयर्स अगो में डायनासोर का एक्सटिंक्शन है। एम आई क्लियर? और जो जुरासिक में डायनासोर डोमिनेंट है, उसी जुरासिक में आर्कियोप्टेरिक्स आ रहा है, और उसी आर्कियोप्टेरिक्स से मॉडर्न बर्ड्स आ रहा है क्रिटेशियस में। गॉट माय पॉइंट? ये दिखाएंगे हम, कहां है सब दिखा देंगे, 139 में दिया हुआ है। अब देखो बेटा, इसमें तो आपको पता है एबीसीडी क्या होगा, हर किसी को पता है। दिस इज ब्रेकियोसोरस, दिस इज स्टेगोसोरस, ठीक तो? এবারে ব্রেকিওসরাস থেকে চলে গেল কে? এটা ট্রাইসেরাটপস। স্টেগোসরাস से क्या गया? दैट इज टायरानोसोरस रेक्स। अब चलो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या आएगा? आर्कियोप्टेरिक्स, फिर आएगा टेरानोडॉन, ये है टेरानोडॉन, और ये है क्रोकोडिलिया। यही तो दिया हुआ है, लेकिन क्रोकोडिलिया अभी भी प्रेजेंट है और कोई प्रेजेंट नहीं है। এই জন্য এটাকে আমি উপরে ডট করে তুলে দিয়েছি, বুঝতে পেরেছো? ওখানেও কালার এখানে তুলে দেওয়া আছে, কিন্তু একটু গন্ডগোল আছে ওখানে। टेरानोडॉन को भी ऊपर खींच दिया, लेकिन टेरानोडॉन ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। अच्छा, ये फिल इन द ब्लैंक्स हर कोई कर सकते हो, इसमें किसी के मन में कोई भी दुविधा तो नहीं है माय डियर? एक सेकंड, हाँ अमित जी बताइए। देख रहे हैं, अभी क्लास में है, 3:40 के बाद देखेंगे। हाँ, तो टेरानोडॉन जो है वो भी फ्लाइंग रेप्टाइल है, आर्कियोप्टेरिक्स भी फ्लाइंग रेप्टाइल है। एम आई क्लियर? अब जरा देखिए ध्यान से, तो ये जो ए है, दिस विल बी, बोलो, ब्रेकियोसोरस, ताई तो? ब्रेकियोसोरस। अब देखो दिस वन इज, बोलो, स्टेगोसोरस, ये बोलो, মারবো চড় একটা, এটা টাইরানোসরাস। ভালো করে দেখ, ট্রাইসেরাটপস, দিস ট্রাইসেরার পেয়েছিস? আরে ব্রেকিওসরাস তো আমার ভুল হয়েছে, এটা মাই মিস্টেক। দিস ওয়ান ইজ স্টেগোসরাস, দেখি, হ্যাঁ মাই মিস্টেক। দিস ইজ স্টেগোসরাস, दिस इज स्टेगोसोरस, दिस इज ब्रेकियोसोरस। कौन पहले आ रहा है ये देखो, ब्रेकियोसोरस कम्स फर्स्ट, उसके बाद स्टेगोसोरस, है ना? वही सीक्वेंस है, इसीलिए देखो लेवल, इसका लेवल सोचो, इसका लेवल ऊपर है ना, तो ब्रेकियोसोरस बाद में आया, स्टेगोसोरस पहले, ब्रेकियोसोरस पहले आया, स्टेगोसोरस बाद में आया। अब स्टेगोसोरस से आता है ट्राइसेराटोप्स, ब्रेकियोसोरस से आता है, बोल, टायरानोसोरस। टायरानोसोरस के लिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? टायरानोसोरस के लिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? जल्दी, विदाउट लुकिंग। Dagger like teeth. Has fearsome के बोल बे माँ? Has fearsome dagger like teeth 20 feet long, है तो? ये लिखा है ना? Yes sir. Has fearsome है, खुजे बच्चीस ना? 141, 140, तो देख पुरानो बोई तो 140,
নতুন বইতে 124। আচ্ছা, হ্যাজ ফিয়ারসাম ড্যাগার লাইক টিপ, ঠিক আছে, एंड 20 फीट टॉल लिखा है, 20 फीट लॉन्ग। लेकिन और एक चीज उस पे ऐड होगा, दिस इज कार्निवोरस। तो टायरानोसोरस इसमें से जितने भी है उसमें से टायरानोसोरस इज कार्निवोरस, सो दिस इज कार्निवोरस। ये एक क्वेश्चन हो सकता है, और बाकी तो आपको पता ही है, स्फीयरसम डैगर लाइक टीथ एंड 20 फीट लॉन्ग। उसके साथ साथ और दो चीजें मैं, माय डियर, आई शुड टेल यू कि बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ट प्लेट एंड स्पाइन्स। इसका आंसर होगा स्टेगोसोरस। पिक्चर देखो, बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ट प्लेट एंड स्पाइन्स। एम आई क्लियर माय डियर? ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। The dinosaur with longest neck, answer is Brachiosaurus. सबसे लंबा है ना, longest neck, the answer is Brachiosaurus. Flying dinosaur both pteranodon होगा and Archaeopteryx होगा. Most primitive bird is Archaeopteryx इनमें से। तो ये Archaeopteryx, अगर ई के बारे में बात करें तो दिस इज Archaeopteryx lithographica, है ना, Archaeopteryx lithographica। इसका जो ये है स्पीशी है, दैट इज Archaeopteryx lithographica, है ना। इसके बारे में आपको पता भी है, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड एविस, रेप्टिलिया एंड एविस। तो Archaeopteryx lithographica का ओरिजिन कब मैंने बताया, इन द जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक इज द एरा, सो इट्स अ जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा, Archaeopteryx का ओरिजिन। और मॉडर्न बर्ड्स का ओरिजिन इन द क्रिटेशियस, और क्रिटेशियस में ही डायनासोर का एक्सटिंक्शन था। तो মাথায় রাখতে হবে এগুলো, একটাও ভুললে চলবে না। রিমেম্বার দিস। এন্ড ডায়নোসর কা অরিজিন ইন দ্য ট্রাইয়াসিক। তাহলে এই যে অরিজিনের কথা যখন এই জায়গাটা আমরা ধরছি, লুক এট দিস রিজিয়ন মাই ডিয়ার, দিস ইজ इन द ट्राइयासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा, তাই তো, ट्राइयासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए माय डियर, जो मैं बोल रहा हूं वही याद रखना है आपको, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दिस वन इज क्रोकोडिलिया, दिस वन इज क्रोकोडिलिया, क्रोकोडिलिया एसपी, ठीक, एंड दिस वन इज टेरानोडॉन, ताई तो, टेरानोडॉन। क्रोकोडिलिया इज द मोस्ट सक्सेसफुल रेप्टाइल, ताई तो, क्रोकोडिलिया इज द मोस्ट सक्सेसफुल रेप्टाइल। रेप्टाइल्स क्यों सक्सेसफुल हुआ था, व्हाई वर रेप्टाइल्स कॉल्ड द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिजम्स? फर्स्ट मोस्ट सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिज्म रेप्टाइल्स, क्यों असर्शन है ये? Reptiles eggs are covered by hard shells. Very good, chidoic eggs, 8 eggs covered with hard shells. That means they prevent drying up in the sun. NCERT में लिखा हुआ है, 139 में लिखा हुआ है, the shells prevent, 8 covered with hard shells prevent drying up in the sun, लिखा আছে ना। So this is the reason that reptiles were successful, বুঝতে পেরেছো? तो reptiles were the first सक्सेसफुल लैंड, टेरेस्ट्रियल और लैंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, इसका रीजन अभी बता दिया मैंने। क्लीरोइक एग्स कहते हैं उसको, है ना, शेल्ड एग्स बटे माने क्लीरोइक एग्स। सो दे वर द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिजम्स, एंड इसका रीजन है क्लीरोइक एग्स। दैट मींस द एग्स आर कवर्ड विद हार्ड शेल्स दैट प्रिवेंट ड्राइंग अप इन द सन, ठीक है ना। और अगर क्लीरोइक एग्स भी एजर्शन हो गया तो उसका रीजन होगा दैट प्रिवेंट ड्राइंग अप इन द सन। মনে রাখ বেটা, যেরকম ভাবে কোশ্চেন আসবে সেই অনুযায়ী আনসার করবে। अब जरा देखिए, तो ये हो गया डायनासोर का। अच्छा, আরেকটা জিনিস ভাবছিলাম বলবো কি জানো, ও हाँ हाँ, रेप्टाइल्स का डोमिनेंस कब है, रेप्टाइल्स का डोमिनेंस कब है बताइए। एनसीईआरटी में लिखा क्या है बेटा, बताओ बताओ जल्दी। रेप्टाइल्स का डोमिनेंस एनसीईआरटी नहीं पढ़ा आप लोगों ने सही से। एनसीईआरटी पढ़ाते অনেক খামতি আছে এখনো। नेक्स्ट 5 डेज टारगेट करो, एनसीईआरटी हर एक पन्ना, हर एक वर्ड्स को आपको तवज्जो देना है माय डियर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, रेप्टाइल्स का डोमिनेंस कब है? मेसोजोइक। मामार আমায় ক্ষমা কর, এনসিইআরটি 139 এর লাস্ট লাইন কি বলছে? ইন দ্য নেক্সট 200 বিলিয়ন ইয়ার্স reptiles of different shapes and sizes dominate the earth's surface, লেখা আছে না? কি হলো? ইয়েস স্যারই তো করছিস, নিজে বলতে পারছিস না কেন? এটা আমার ক্লাস বাবা, আমি খুব ভালো লোক জানিস তো, সবাই জানে। দেখ, গেট কিপার থেকে শুরু করে যেখানে গাড়ি পার্ক করে সে থেকে শুরু করে সবাই জানে, মোহিত স্যার অব্দি সবাই জানে আমি খুব ভালো লোক। আমি কোনদিনও বলেছি আমি খারাপ লোক? আমি খুব ভালো। পেয়েছিস খুঁজে? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ইয়েস স্যার। শোনো মা এবার, তাহলে এটা কি হবে হিসেবটা মনে রাখো। পারমিয়ান থেকে ট্রাইয়াসিক, ট্রাইয়াসিক থেকে জুরাসিক, জুরাসিক থেকে ক্রিটেশিয়াস, ক্রিটেশিয়াস থেকে টারশিয়ারি, 50 50 50 50, চারটে 50 মিলিয়ন ইয়ার, বুঝতে পেরেছো? দ্যাট কাউন্টস টু 200 মিলিয়ন ইয়ার্স। Am I clear?
এই যে লাইনটা লেখা আছে that reptiles in the next 200 million years reptiles of different shapes and sizes dominated the earth, इसका मतलब 200 million years कहां से आएगा? 50 into 4, तो 50 into 4 अगर अप्रोक्सीमेशन हम लोग करते हैं तो पर्मियन से ट्राइएसिक, ट्राइएसिक से जुरासिक, जुरासिक से क्रिटेशियस, क्रिटेशियस से टर्शियरी, खत्म। বুঝতে পেরেছো? শিখতে হবে তো এগুলো। Am I clear with this my dear? এখানে লিখছি না, এটা আমি পরে করছি, ठीक है? আর কি বলবো ভাবছিলাম, अच्छा ठीक है, ওটা তো পরেরটাই করছি, ठीक है? ये डन हो गया, इसका फोटो ले ले बेटा, खत्म कर कहानी। ले लिया फोटो इसका? इसका फोटो ले लो। छोड़ो, আমি ক্লাসে আছি গো, তুমি আমাকে 12:20 फोन करो। तो इसका फोटो ले लिया बेटा, वेरी गुड। चलिए प्रोसीड करते हैं, इरेज करते हैं इसको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये एसीটা চালাই নি কেন? গরম লাগছে। এই কে আছো, একটু এসিটা চালিয়ে দেনা বাবা। हाँ, इसको इरेज करते हैं बेटा। তোদের কোনো গ্রুপ আছে রে? হ্যাঁ, তোদের ব্যাচের কোনো গ্রুপ আছে? আছে? ফটো তুলে গ্রুপে পোস্ট করে দিবি, ঠিক আছে? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, डायरेक्टली पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। बाकी एविडेंसेस के बारे में बाद में बात करते हैं, सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाला पार्ट पढ़ लेंगे, है ना? और हर किसी को इसको फॉलो करना पड़ेगा। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल 138 139 वाला जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो जरा शुरू करते हैं हम लोग। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज एरा। अच्छा, আরেকটা জিনিস বলে রাখি তোমাদের, बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद दिस, देयर आर 3 टर्म्स, है ना? इसको देख लीजिए, देयर आर 3 टर्म्स, আমি এইদিকে লিখছি। लुक एट दिस, एरा जिसके अंडर आता है पीरियड और जिसके अंडर आता है इपॉक। एम आई क्लियर? ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कहां है देखिए, पेज नंबर 129 देखिएगा। फर्स्ट पैराग्राफ जब खत्म हो रहा है उससे 2 लाइन 3 लाइन ऊपर देखिए, ब्रैकेट में लिखा है एरा, फिर पीरियड। फर्स्ट पैराग्राफ जहां खत्म हो रहा है उसके 2-3 लाइन ऊपर দেখতে পেয়েছিস? পেয়েছিস? ব্র্যাকেটে লেখা আছে দেখ, এরা, তারপরে পিরিয়ড, তারপরে ইপক। পেয়েছিস? হ্যাঁ, মানে উল্টো করেছে ওখানে, ওখানে এরকম ভাবে করেছে না, उधर ऐसे बनाया, बात तो एक ही है, ठीक है ना? तो ये इपॉक जो टर्म है, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। और इपॉक टर्म एनसीईआरटी में क्यों दिया है पता है? ये कोई सोचते नहीं है हम लोग। इपॉक इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग को एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इन केस ऑफ हॉर्स पढ़ना है। अगर आप एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ हॉर्स, ये जो ईओसिन, मियोसिन, ओलिगोसिन, प्लियोसिन, पेलियो, ये पढ़ते हो आप, ये क्या है? दीज आर द इपॉक्स अंडर द पीरियड, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। बुझতে পেরেছো? सो इसीलिए हॉर्स का एवोल्यूशन पढ़ने के लिए आपको इपॉक चाहिए। एनीवे, तो यह है एरा। एरा के अंडर आता है पीरियड। तो एरा में क्या क्या है? सबसे पहले जो एरा आएगा दैट इज प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन, दिस एरा इज प्री कैम्ब्रियन। उसके ऊपर आएगा पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, फिर आएगा मेसोजोइक, फिर आएगा सीनोजोइक। ये तो हर किसी को पता है माय डियर। प्री कैम्ब्रियन शायद आपको पता नहीं था, इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है? अब देखो प्री कैम्ब्रियन में क्या आएगा। नंबर 1 आर्कियोजोइक,
आर्केओजोइक, आर्कीबैक्टीरिया वाला, एंड देन प्रोटेरोजोइक मतलब प्रोटोजुआ वाला, प्रोटेरोजोइक। इस बार नीट में प्रोटेरोजोइक क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 नीट में प्रोटेरोजोइक वाज गिवन। एनसीईआरटी में किसी जगह पे लिखा नहीं है लेकिन आया था। हालांकि वो मैच द कॉलम था, वो करना बहुत इजी था, एलिमिनेशन में हो जा रहा था, लेकिन पिछले बार हुआ था, इस बार नहीं हो सकता है। इस बार वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे रहेगा। अब जरा देखिए, इसको पैलियोजोइक के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन, फिर सिलूरियन, फिर डेवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन। देखा आपने? इज इट ओके माय डियर? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। एक चीज देख लीजिए, पेज नंबर 138 में जहां पे प्लांट का एवोल्यूशन दिया हुआ है उसमें देखो शुरू किया गया है सिलूरियन से, आई गेस। देखो सिलूरियन से किया है ना, तो उसके नीचे दो आ रहा है, ऑर्डोविशियन एंड कैम्ब्रियन। समझ में आ गया? सिलूरियन को कोइंसाइड करोगे तो राइनिया टाइप ऑफ प्लांट्स पे आएगा शायद। देखो राइनिया टाइप ऑफ प्लांट्स पे सिलूरियन आ रहा है, देखा आपने? उसके नीचे ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर्स जो है दैट विल कम अंडर ऑर्डोविशियन, और उसके नीचे जो क्लोरोफाइट एंसेस्टर है दैट विल कम अंडर कैम्ब्रियन। उधर मत करो, अभी बाद में करना। अच्छा हो गया। अब इस पे देखो तीन आएगा, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। डन हो गया। और इस पे टर्शियरी 3 डिग्री लिखा मैंने, एंड क्वाटरनरी 4 डिग्री लिखा मैंने। खत्म। दीज आर ऑल द पीरियड्स, दीज आर ऑल द पीरियड्स। अच्छी बात है। अब इसके अंडर मैंने क्या कहा आपको? इपॉक आएगा, बताया मैंने। अब इपॉक के बारे में बात करेंगे तो इपॉक किस तरह से आएगा अंडर टर्शियरी एंड क्वाटरनरी? जरा ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन। এটা মনে রেখো, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन। याद है? याद रखोगे? अब जरा देख, इयोसिन में क्या आएगा? इयोहिप्पस, इयोहिप्पस, जिसका और एक नाम है हाइरैकोथेरियम। समझ में आया? नेक्स्ट क्या आएगा बोलो? इयोहिप्पस, मेसोहिप्पस, मेरिचिप्पस, मेरिचिप्पस, प्लियोहिप्पस, बोल, एक्कस। इयोहिप्पस का और एक नाम है हाइरैकोथेरियम। ये नाम गलत नहीं होना चाहिए। आपके मॉड्यूल देखिएगा, उसमें छोटा सा एक चार्ट दिया हुआ है, वही चार्ट आप सिर्फ पढ़ोगे तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है? एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में, वही चार्ट इज एनफ फॉर एवरी काइंड ऑफ डिस्कशन। एम आई क्लियर? तो जो चार्ट पे छोटा सा मॉड्यूल में छोटा सा ये वाला देख, এটা না সরি, আরেকটা আছে, এক সেকেন্ড, ওইটাকে একবার দেখে নিবি, হয়ে যাবে। এই যে এইটা, এই ये देख ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये वाला केवल इसको पढ़ लेना। एम आई क्लियर? केवल इसको पढ़ लेना, हाइट पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल लुक्स लाइक फॉक्स, लुक्स लाइक शीप, लुक्स लाइक पॉनी, ये লেখা আছে, এগুলো শুধু পড়বে, আর কিচ্ছু লাগবে না। एम आई क्लियर? ये चार्ट को खत्म कर लेना बेटा। यस सर। चल नेक्स्ट हो गया ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग आते हैं, अच्छा इस पे मार्किंग कैसे करेंगे हम लोग, जरा ध्यान से देखिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग देख लीजिए। ये कैम्ब्रियन अप्रोक्सीमेशन करेंगे हम लोग, अप्रोक्सीमेशन, समझ में आया? देख कैम्ब्रियन, इसको 500 मिलियन ईयर्स, ठीक, 50 करके कम कर, 450 मिलियन ईयर्स, 400 मिलियन ईयर्स, 350 मिलियन ईयर्स, 300 मिलियन ईयर्स, 250 मिलियन ईयर्स, 200 मिलियन ईयर्स, 150 मिलियन ईयर्स, 100 मिलियन ईयर्स, 50 मिलियन ईयर्स एंड 0 मिलियन ईयर्स, माने मॉडर्न। समझ में आ गया? मैक्सिमम टू मिनिमम गए हम लोग, और इसमें इन दोनों को मिला के हम लोग एकदम आर्कियोजोइक पे चले जाते हैं, इसको 1000 मिलियन ईयर्स। समझ में आ गया?
तो ये जो सीक्वेंस है लगभग मैंने अप्रोक्सीमेशन पे डाल दिया, ठीक है। अब जरा देखिए, इस पे हम लोग बात करेंगे 350 मिलियन ईयर्स, दैट इज डेवोनियन, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी है अपन को, ठीक है। तो पेज नंबर 139 का डिस्कशन देखोगे तो डेवोनियन में लिखा है अर्ली रेप्टाइल्स, देखा आपने, जिसका एक्सटिंक्शन भी दिया हुआ है, एक्सटिंक्ट लिखा हुआ है। एनी डाउट्स? 139 में है ना डेवोनियन में, वो तो डेवोनियन आ रहा है 350 मिलियन ईयर्स में अर्ली रेप्टाइल्स। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, ये जो अर्ली रेप्टाइल है, अगर आपसे पूछा गया रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल कब हुआ, दैट इज नॉट डेवोनियन। रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल उसके बाद आता है माय डियर, जहां पे सौरोप्सिडा और साइनैप्सिडा दोनों होगा, दैट इज कार्बोनिफेरस। एम आई क्लियर? दैट इज द केस ऑफ रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल। ये जो अर्ली रेप्टाइल दिखा गया, ये अर्ली रेप्टाइल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। मेनली जो आपका एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल का आंसर होगा, दैट इज फ्रॉम द कार्बोनिफेरस। একটা জিনিস মাথায় রাখবে ऑनलाइन स्टूडेंट, ध्यान से सुन, एक चीज देख, कार्बोनिफेरस और पर्मियन के बीच में जब चल रहा है तो कार्बोनिफेरस चल रहा है, पर्मियन और ट्राइएसिक के बीच में पर्मियन चल रहा है, इसके बीच में ट्राइएसिक, इसके बीच में जुरासिक, इसके बीच में क्रिटेशियस, इसके बीच में टर्शियरी, उसके क्वाटरनरी। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को? ये इस तरह से इंटरप्रेट कीजिएगा। अब देख, अर्ली रेप्टाइल्स एक्सटिंक्शन हो गया, और अर्ली रेप्टाइल्स, अब देख, ये कार्बोनिफेरस जब हम लोग कंसीडर करेंगे, इसके ऊपर देख, कार्बोनिफेरस में दो चीज हो रहा है, ये तो देखा आपने, कार्बोनिफेरस में दो चीज हो रहा है, वन इज कॉल्ड सौरोप्सिडा, द अदर इज कॉल्ड साइनैप्सिडा, ये तो आपने देखा, वन इज सौरोप्सिडा, द अदर इज साइनैप्सिडा। तो दिस वन इज सौरोप्सिडा, SAUROPSIDA, सौरोप्सिडा, दैट इज इन कार्बोनिफेरस। So this is what is called the radiation of reptiles. Am I clear online student? ध्यान से देख। And this one is synapsida. आपने देखा? कोई दिक्कत? This synapsida? তাহলে এটা কোথায় হচ্ছে? কার্বনিফেরাসে হচ্ছে, কিন্তু মাথায় রাখবে। এবার তুমি দেখো সৌরপসিডা থেকে अगर हम लोग सोचे तो कितने वेरिएशंस है, बहुत सारे वेरिएंट्स आता है। सबसे पहले ऊपर चला जाओ तो क्या आएगा? टर्टल। तो सौरपसिडा कार्बोनिफेरस में ही क्या ओरिजिनेट किया? टर्टल। टर्टल अभी भी है। टर्टल का साइंटिफिक नेम 2018 नीट का क्वेश्चन था, बताओ। 2018 में मैच द कॉलम था, কি হলো? টার্টল का সাইন্টিফিক নেম কি রে? পড়াশোনা কি তোরা আমার ক্লাসে কি করবি তোরা, আমি শুধু ভাবছি, মরে যাবি রে। হ্যাঁ, কি আছে? ভলিউম 1 এনসিইআরটি কোথায় আছে? এনসিইআরটি ভলিউম 1 খোলো, পেজ নাম্বার 58। কি হলো, আনিস নি? নিজেকে এনেছিস তো ক্যারি করে, তা বই আনিস নি? চেলন और किलोन। হ্যাঁ চেলন, ততক্ষণ পরে বলছিস কেন মা? तो टर्टल, अच्छा टर्टल का और एक क्वेश्चन होता है, देख और एक क्वेश्चन बता देते हैं। टूथलेस ऑर्गेनिज्म, उस पे टर्टल इज एन आंसर। एंड बर्ड्स आर हिप्पोकैम्पस, मने रखबे, हिप्पोकैम्पस भी सिलेबस में है, एनसीईआरटी पेज नंबर 57 वॉल्यूम 1, ऑस्ट्रिक्थिस। उसके साथ साथ टर्टल बताया मैंने, दैट इज चेलॉन, और आ गया एक बर्ड्स। तीनों ही अपना सिलेबस का क्वेश्चन है। दीज आर टूथलेस ऑर्गेनिजम्स। की बोलना मने थकबे? टूथलेस ऑर्गेनिजम्स का सवाल में आता है चेलॉन, आता है हिप्पोकैम्पस, आता है बर्ड्स। माथा থাকবে? Because mouth is modified into beaks in case of birds, so they don't have teeth. The teeth যখন নেই ক্র্যাশ করবে কি করে? 2019 এর কোশ্চেন নিটের। Gizzard. Gizzard are stored in the crop. So gizzard and crop and gizzard are also present in case of insecta and also present in case of birds. So cockroach নয়। আচ্ছা বলো, गिजार्ड क्षेत्र गिजार्ड नेचर की, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गिजार्ड, उसके बारे में कुछ बताओ। ফাংশন জিজ্ঞেস করিনি, স্ট্রাকচার। এনসিইআরটি লাইন 113 তে লেখা আছে, পুরনো বইতে 113 তে লেখা আছে, উপর থেকে 6 লাইন নিচে। হ্যাঁ, এই অনলাइन স্টুডেন্টস बताओ, विदाउट लुकिंग इनटू द बुक। কি হলো বাবা? এটা আমি আছি ক্লাসে, আমি খুব ভালো লোক, বলেছি না? আউটার সার্কুলার মাসল, ইনার কাইটেনিয়া, কিউটিকুলার টিথ লেখা নেই? আউটার সার্কুলার মাসল আর ইনার কিউটিকুলার টিথ। এই লাইনটা পড়তো এনসিইআরটি এর ভলিউম 1 113, লাইনটা পড়তো একবার অনলাइन স্টুডেন্টস, এরা বই আনেনি। কি হলো, এত টাইম লাগছে? इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को माय डियर? वॉल्यूम 1 पेज नंबर 113, ऊपर থেকে 6 নম্বর লাইন। Sir, it has an outer layer of thick circular muscles and thick inner cuticle forming 6 highly chitinous plate called teeth.
समझे? दिस इज द कैरेक्टर ऑफ गिजार्ड। ये सवाल आज तक पूछा नहीं गया नीट में, समझे? चलो नेक्स्ट। तो सौरभ से टर्टल आ गया, फिर क्या आया? लिजर्ड। देखो दो चीज एक साथ आया, एक है टर्टल, दूसरा है लिजर्ड। सीधा तो करते हैं, सीधा लिजर्ड, है ना बेटा? दोनों ही अभी भी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है? तो अब इससे क्या आएगा? और एक चीज आएगा इससे बहुत इंपॉर्टेंट जो है, देखिए सौरभ से बात। अच्छा और एक चीज, সৌরভ SAUR, ডাইনোসর का भी SAUR, তার মানে সৌরভ যেখানে আছে ওখান থেকে ডাইনোসর আসবে। পরিষ্কার? তাহলে এবার কি তৈরি হচ্ছে ওখান থেকে? ভালো করে চিন্তা করে দেখো, দেখো থেকোডন্স আসবে, দেখেছো? तो थेकोडॉन कब आ रहा है? एकदम परमियन के मार्जिन पे आ रहा है, तो उसको परमियन कंसीडर करेंगे। तो सौरभ में अब देखिए जरा ध्यान से, दिस इज द लेवल, है ना बेटा? इस लेवल पे क्या आ रहा है? थेकोडॉन्स। थेकोडॉन समझते हो? तो टीथ आर एम्बेडेड इनटू गम्स, गम्स के अंदर टीथ एम्बेडेड है, तो दैट इज कॉल्ड थेकोडॉन्स। और ये थेकोडॉन का एक्सटिंक्शन भी उसी में हो गया, परमियन में। तो इसका ओरिजिन भी है, एक्सटिंक्शन भी परमियन में है। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? और इसी थेकोडॉन से आप देखिए क्या हो रहा है, दो चीज हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो आ रहा है क्रोकोडिलिया, तो उसी परमियन में थेकोडॉन से आ गया कौन? द मोस्ट एडवांस्ड रेप्टाइल, दैट इज कॉल्ड क्रोकोडिलिया। भालो करे सुनो, एटा इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। तो पहले आया क्रोकोडिलिया, देख लिया आपने। और उसी में देखो परमियन अभी भी चल रहा है, जहां पे आया तुआतारा, देखा आपने? और उसी तुआतारा आ गया, और उसी में देखो ये क्या कहते हैं, ट्रायसिक में आपका आ गया स्नेक्स। देख इसी थेकोडॉन से क्या क्या चीजें आया, इसको ध्यान से देख। थेकोडॉन से क्या क्या चीज आया? दो चीज आया। लेकिन उससे पहले देख सौरभ से और क्या आया? सौरभ से और एक चीज देख ले, यही परमियन में सौरभ से क्या आया? यही परमियन में सौरभ से क्या आया? एक है तुआतारा, और ट्राइएसिक में आ गया स्नेक्स। ट्राइएसिक एनसीईआरटी এটাকে বাঁদিকে করেছে, এটাকে ডান দিকে করেছে, কিছু এসে যায় না। इसको करा स्नेक्स, देखते बच्चों? डन। अब देख इसमें थेकोडॉन से क्रोकोडिलिया आ गया सीधा। अब ध्यान से सुन, इस क्रोकोडिलिया में, ये क्रोकोडिलिया पहले आया, अब इसी में ट्राइएसिक में देख, इसी ट्राइएसिक में देख क्या आया? डायनासोर। डायनासोर। और यही डायनासोर का एक्सटिंक्शन कब है? 65 मिलियन, मतलब इसके बीच में, मतलब इस जगह पे, दैट इज क्रिटेशियस चल रहा है। तो 65 मिलियन ईयर्स डायनासोर का एक्सटिंक्शन, ताई तो ए डायनासोर एक्सटिंक्शन होएगा, लो एक्सटिंक्ट, राइट? खत्म हो गया। तो डायनासोर अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उसका रिलेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। और उसी में माय डियर डायनासोर का डोमिनेंस कब है? जुरासिक में। तो इसको गोल करके मैंने लिख दिया डोमिनेंस ऑफ डायनासोर, ताई तो? सो डोमिनेंस ऑफ डायनासोर हो गया काम, डोमिनेंस ऑफ डायनासोर। और उसी में, उसी जुरासिक में मैंने क्या लिखा? आर्कियोप्टेरिक्स। এটা এনসিইআরটি তে নেই, आर्कियोप्टेरिक्स, दैट इज प्रिमिटिव बर्ड। दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक? और इसी आर्कियोप्टेरिक्स से आया क्या? मॉडर्न बर्ड्स। मॉडर्न बर्ड्स कब आया? क्रिटेशियस में आया। तो यही आर्कियोप्टेरिक्स से डेवलप करा क्या? ये है मॉडर्न बर्ड्स। मॉडर्न बर्ड्स, मॉडर्न बर्ड्स। और वही मॉडर्न बर्ड्स अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, তাই তো? এই জন্য এনসিইআরটি উপরে লিখেছে বার্ডস। বুঝতে পেরেছো? वो जो बर्ड दिया है वो मॉडर्न बर्ड है, जो ऊपर पिक्चर दिया है। समझ में आया? बिकॉज दैट इज ऑल्सो, दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ, एनवायरमेंट। अब देख साइनैप्सिडा के बारे में बात करें तो कार्बोनिफेरस में ही आ जा, और कार्बोनिफेरस में ही देख साइनैप्सिडा से आ रहा है पेलिकासोरस, देखा आपने? और उसी का पेलिकासोरस, ताई तो रे? पेलिकासोरस का एक्सटिंक्शन भी उसी में आ गया, कार्बोनिफेरस में ही उसका एक्सटिंक्ट है। देख पेलिकासोरस इज एक्सटिंक्टेड, और उसी कार्बोनिफेरस में पेलिकासोरस से शुरू हुआ। इधर देख इसी रीजियन पे ये शुरू हुआ, उसी टाइम पे, है ना? थेराप्सिड्स। तो थेराप्सिड्स आ गया। थेराप्सिड्स का एक्सटिंक्शन कब हुआ? ट्राइएसिक में। और उसी ट्राइएसिक में मैमल्स आया, उसी ट्राइएसिक में मैमल्स का ओरिजिन हुआ, है ना बेटा? यही तो है, डन हो गया, कुछ भी नहीं है, सो इजी। अब इसमें कुछ चीज ऐड करना है माय डियर। ये तो एनसीईआरटी में जो था वो निपटा दिया हम लोगों ने, और इससे कोई भी सेंटेंस हम लोग कोई आंसर कर सकते हैं। देखो मैमल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम थेराप्सिड्स इन द ट्राइएसिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा, आंसर हो गया, है ना? तो थेराप्सिड्स कहां से आया? पेलिकासोरस से आया, पेलिकासोरस इन द कार्बोनिफेरस। तो थेराप्सिड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पेलिकासोरस इन द कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा। बुझते पेरेছো? वेरी मच इन द सेम वे साइनैप्सिड्स, पेलिकासोरस कहां से आया? साइनैप्सिडा से आया। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है माय डियर,
अब देखो रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल्स का सवाल अगर पूछा जाएगा तो आंसर होगा पर्टिकुलरली दिस, ये दैट इज कार्बोनिफेरस। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। और याद रखिएगा एक और चीज, जैसे डेवोनियन एंड कार्बोनिफेरस ये दोनों जो है पीरियड, दीज टू आर द पीरियड ऑफ डोमिनेंस ऑफ एम्फीबियंस। याद रखिएगा माय डियर, डेवोनियन एंड कार्बोनिफेरस, डेवोनियन एंड कार्बोनिफेरस, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक डेवोनियन एंड कार्बोनिफेरस। समझ में आया? मतलब डेवोनियन से कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस से पर्मियन, दिस इज द पीरियड ऑफ डोमिनेंस ऑफ एम्फीबियंस। समझ में आया? ठीक है। এর আগে হচ্ছে ডমিনেন্স অফ সিলুরিয়ান, है ना, ऑर्डोविशियन, दिस इज द डोमिनेंस ऑफ पिसेस। বুঝতে পেরেছো? अब एम्फीबियंस के बाद वो सेंटेंस, इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस डोमिनेटेड द अर्थ। तब देखो मैंने क्या कहा था आपको, पर्मियन से ट्राइएसिक, ट्राइएसिक से जुरासिक, सो पर्मियन से ट्राइएसिक, ट्राइएसिक से जुरासिक, जुरासिक से क्रिटेशियस, टर्शियरी से क्रिटेशियस, बताया था मैंने। तो 50-50 करके ले लो, तो दिस इज 50, दिस इज 50, this is 50 and here goes 50. In total you get 200 million years. Am I clear? In the next 200 million years reptiles of different shapes and sizes dominated the earth. तो समझ में आ गया कहां से कहां? ये क्वेश्चन अगर पूछे जाएगा तो गलती नहीं होगा। तो ये दोनों याद रखिएगा, दिस द डोमिनेंस ऑफ एम्फीबियंस। एक्चुअली डेवोनियन হচ্ছে अर्ली एम्फीबियंस, তারপরে হচ্ছে পরের एम्फीबियंस গুলো। বুঝতে পেরেছিস? अब बहुत सारी चीजें बतानी है माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবে, সেটা হচ্ছে ট্রাইয়াসিক জুরাসিক এই দুটো পিরিয়ডে, ट्राइएसिक एंड जुरासिक, यहां से लेके यहां तक ट्राइएसिक और जुरासिक से लेके क्रिटेशियस, ये है। दिस इज इन केस ऑफ प्लांट्स, दिस इज द डोमिनेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेंट, এটা আমি পরে দেখাচ্ছি, কিন্তু এটা মনে রেখো, দিস ইজ দ্য পিরিয়ড অফ ডোমিনেন্স অফ জিমনোস্পার্ম, वेरी इंपॉर्टेंट, 100 मिलियन ईयर्स। বুঝতে পেরেছো? अब देखो और कुछ चीजें बतानी है माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात तो यह है, पेज नंबर 138 का थ्योरी पे जाएंगे, 139 का थ्योरी पे जाएंगे। और अगर थ्योरी के बारे में बात करते हो तो सबसे पहले एक सेंटेंस देखो, इन द 500 मिलियन ईयर्स इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्मड एन एक्टिव एनसीईआरटी लाइन, তাই তো? তাহলে 500 মিলিয়ন ইয়ার ক্যাম্ব্রিয়ান, চলে যাও, কি বলবো আমরা? अरे बाबा रे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को, ना कि हिब्रू, ग्रीक एंड लैटिन लग रहा है? दिस इज इनवर्टिब्रेट्स were formed and active, পড়তে হবে তো। ইনভার্টিব্রেটস were formed and active হয়ে গেল 500 মিলিয়ন ইয়ার্স। এবারে কি বলছে এনসিইআরটি? 350 মিলিয়ন ইয়ার্সে কি আছে? সিভিডস এন্ড সার্টেন ফান্ডস না কি লেখা আছে না? 350 মিলিয়ন মানে ডিভোনিয়ান, ডেভোনিয়ানে চলে যাও, ডেভোনিয়ান এখান থেকে টানো, টেনে এখানে একটা পয়েন্ট লিখে নাও। 350 তে কি আছে তাহলে? জলেস ফিশেস, সরি। হ্যাঁ, তো 350 তে কি আছে? জলেস ফিশেস। জলেস ফিশেস, জলেস ফিশেস মানে কি বলছে এখানে? দিস আর বেসিক্যালি বলো, জলেস কারা? একনাথা যারা। তো সেখানে জলেস ফিশেসের ওখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা বলতে হবে, সেটা হচ্ছে সিলাক্যান্থের কথা। ফিশ উইথ স্টাউট এন্ড স্ট্রং ফিনস ডমিনেটেড দি ল্যান্ড এন্ড দেন ওয়েন্ট ইনটু ওয়াটার, লেখা আছে না এনসিইআরটি তে? তো ফিশ উইথ স্টাউট এন্ড স্ট্রং ফিনস, ফিশ উইথ স্টাউট এন্ড স্ট্রং ফিনস, ঠিক আছে? এরা কারা? সিলাক্যান্থ, লেখা আছে তো এনসিইআরটি তে। সিলাক্যান্থের সায়েন্টিফিক নেম কি? ল্যাটিমেরিয়া sp, ল্যাটিমেরিয়া। ইটস আ কানেক্টিং লিংক between pieces and amphibians. It's a connecting link. It's a connecting link between pieces and amphibians, তাই তো? হয়ে গেল। সিলাক্যান্থের আর কি ইম্পর্টেন্ট? আচ্ছা, 1938 যেটাকে পাওয়া গেছিল সাউথ আফ্রিকাতে, তারপরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাই তো? ইট ওয়াজ থট টু বি এক্সটিংক্ট বাট সাডেনলি রিঅ্যাপিয়ার্ড ইন দি কোস্ট অফ সাউথ আফ্রিকা इन 1938, তারপরে उसको वो फिर नहीं मिला। तो 1938 এটা রেফারেন্স এ পড়ে রাখবে, 1938, इसको याद रखना, एग्जाम का क्वेश्चन है, ঠিক আছে? এটা ছাড়া 320 মানে তখনও ডেভোনিয়ানই চলছে, এই সরি তখন, হ্যাঁ তখন ডেভোনিয়ানই চলছে। তো 320 যদি আমি টেনে আনি এখান থেকে 320 যদি করি, seaweeds and plants, seaweeds and plants, ঠিক আছে? তো seaweeds and plants, ठीक, कोई दिक्कत किसी को? एसे गल बेटा। तो जॉलेस फिशेस का डिस्कशन हो गया, सिलाकैंथ का डिस्कशन हो गया, स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स हो गया, जो भी था सब कंप्लीट कर दिया मैंने।
এবারে আরেকটা জিনিস পড়তে হবে, 200 মিলিয়ন ইয়ার্স ইকথিওসরাস, এনসিইআরটি পেজ নাম্বার 140। ফিশ লাইক রেপটাইলস দেখেছো? কোথায় খুঁজছিস তুই? ওপরে যা। পেয়েছিস ইকথিওসরাস 200? তো হ্যাঁ, তো 200 এ কে আছে? ট্রাইয়াসিক, দেখতে পাচ্ছ? টানো এখান থেকে, ইকথিওসরাস, ইকথিওসরাস, আহা সরি, ICHTHYOSAURUS, ইকথিওসরাসটা কি হবে? ফিশ লাইক রেপটাইলস, ফিশ লাইক রেপটাইলস, ইকথিওসরাস। ঠিক, ডান, কোই দিক্কত? বুঝে গেছো? এবারে চলে এসো, যখন ম্যামলস এর কথা বলছি, when we are talking of mammals, the first mammals কি ছিল অনলাইন স্টুডেন্টস? ফার্স্ট ম্যামলস কি ছিল? shrews, সবাই নিজের কানটা মুলে নাও নিজেরা হাতে করে। like shrews. লেখা আছে লাইক শ্রুজ Light লেখা আছে। shoes. तो लाइक श्रूज एंड श्रूज आर नॉट सेम माय डियर, ये सब गलती नहीं चाहिए मुझे। इट्स अ हार्डकोर एग्जाम, कोई नाटक नहीं, कोई गलती नहीं, जो पढ़ रहे हो एनसीईआरटी का वर्ड्स एकदम सही से बताना है ना? सो द फर्स्ट, फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रूज, तो फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रूज। अच्छा बताइए मैमल्स क्यों सक्सेसफुल हुआ? वाई मैमल्स वर सक्सेसफुल माय डियर? मैमल्स का सक्सेस का रीजन क्या था? एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ना देख के बताओ। नंबर 1, Intelligent, they were viviparous, they could protect their young within their bodies, and number 2, intelligent, intelligent in what? avoiding danger, In and sensing and avoiding danger. তুই ইনস্টলমেন্টে উত্তর দিচ্ছিস কেন রে? They were more intelligent in sensing and avoiding danger, and number 2, they could protect their young within the body, that means they are viviparous. তাহলে more intelligent, NCERT का line, in sensing and avoiding danger, and number 2, protect their young within their bodies. এই জায়গা থেকে আরেকটা কোয়েশ্চেনও আছে, অ্যানিমাল কিংডম, কোয়েশ্চেন নাম্বার 12। অ্যানিমাল কিংডম কোয়েশ্চেন নাম্বার 12 কি আছে বের কর, জলদি পড় কোয়েশ্চেনটা। পুরনো বই হলে পেজ নাম্বার 62, নতুন বই হলে পেজ নাম্বার 53। could the number of eggs or young ones produced by an oviparous and viviparous mother be equal? Why? Could the number of eggs or young ones produced by a viviparous and oviparous mother be equal or why? Equal হবে না? হবে না। আর যদি না হয় তাহলে কি হবে? হলে কি হবে? কেন? কি বললাম? Could the number of eggs or young ones produced by a viviparous or an oviparous mother be equal? Full stop. No. Why? কে বেশি থাকবে? ওভিপ্যারাসের বেশি থাকবে কেন? সাইজ স্মল। কেন সাইজ স্মল করে উত্তর হলো? এই ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, बताइए आप लोग। সব ঘুমিয়ে পড়েছে কিরে? Sir, oviparous এর eggs বেশি হওয়ার কথা কেন? মানে there are chances that they may be destroyed. Absolutely. Risk of survival বেশি, नंबर ऑफ यंग वंस हो, नंबर ऑफ एग्स हो जो बेशी, रिस्क ऑफ सर्वाइवल बॉडी के अंदर कम है, इसीलिए बच्चा कम है। समझ में आया? रिस्क ऑफ सर्वाइवल। चलो नेक्स्ट। अच्छा मैमल्स এটা হয়ে গেল। আরেকটা ম্যামলস এর মধ্যে why was man successful? Why were man successful? Human successful কেন হলো? Language skill and self-consciousness. Language skill and self-consciousness. NCERT line, the most successful story in the evolution of man was self-conscious, language skill and self-consciousness. What kind of evolution does it refer to? লিখছি আমি। হ্যাঁ বলো। Parallel evolution. Very good. Language skill and self-consciousness. NCERT তে লেখা আছে summary last line, যে parallel evolution, development of human brain and language, self-consciousness. This is the case of parallel evolution. It's a case of parallel evolution. Parallel evolution का और एक एग्जांपल है, बताएंगे बाद में। ठीक, তাহলে এটা হয়ে গেল, কোনো অসুবিধা নেই। আর কিছু কোশ্চেন বাকি থাকলো আমাদের? Archaeopteryx already discussed, connecting link between connecting link between
reptilia and aves, and connecting link justifies evolution by proving the latter originated from the former, তাই তো? Connecting link हम लोग evolution में पढ़ते क्यों हैं? Because the latter originated from the former. এই যে evidences based on connecting link আমি लिखेছিলাम, इसका मतलब क्या है? Connecting link अगर हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले क्या है? वायरस. It's a connecting link between non-living and living. তার মানে কি living arose from non-living? Theory of abiogenesis তাই বলছে, তাই তো? नेक्स्ट क्या होगा कनेक्टिंग लिंक का? और एक क्लासिकल एग्जांपल क्या आएगा? यूक्लोरा रूब्रा, सुना है नाम? यूक्लोरा रूब्रा, हाँ, इट्स अ केनोफोरा विथ निमाटोसिस्ट्स. केनोफोरा विथ निमाटोसिस्ट्स, इसका मतलब केनोफोरा विथ स्टिंगिंग कैप्सूल्स. दैट मींस टेनोफोरा विथ निडेरिया राइट कैरेक्टर. सो इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन निडेरिया एंड टेनोफोरा. तो टेनोफोरा निडेरिया से आया. कनेक्टिंग लिंक का कॉन्सेप्ट तो यही है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एवोल्यूशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, তাই তো? Next, you can come to the discussion. আরো কি কানেক্টিং, প্রচুর কানেক্টিং লিংক আছে, যেমন তোমার পেরিপেটাস, কানেক্টিং লিংক বিটুইন Annelida and Arthropoda, peripetus. फिर Neoplena, connecting link between Annelida and Mollusca, তাই না? Annelida and Mollusca, Neoplena, very much in the same way. তুমি চিন্তা করো কত কানেক্টিং লিংক আছে, সব মনে পড়ছে না. হেমিকর্ডেটস তো জানোই, কানেক্টিং লিংক বিটুইন non-vertebrates, non-chordates and chordates. You people know this. इसके बाद आपका वो है कनेक्टिंग लिंक, ওইটা বল, ভুলে গেলাম. পিসেস এন্ড অ্যামফিবিয়া এখনই বললাম, সিলাক্যান্থ, ল্যাটিমেরিয়া, অ্যামফিবিয়া এন্ড রেপ্টিলিয়া, সেমোরিয়া, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया. फिर रेप्टिलिया एविस तो हो गया. फिर एविस रेप्टिलिया एंड अच्छा रेप्टिलिया एंड मैमेलिया, प्रोटोथेरियंस, प्लैटिपस. प्रोटोथेरियंस माने ऑर्निथोरिंकस, वेरी गुड. ऑर्निथोरिंकस माने কি ডাকবিল প্ল্যাটিপাস, স্পাইনি অ্যান্টিটেড, দিস আর প্রোটোথেরিয়ান্স, है ना? তাহলে ওভিপ্যারাস ম্যামালস. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস কি হলো? ম্যামালস originated from reptiles, avis originated from reptiles. ठीक है, ये याद रखना. अच्छा, আরেকটা কন্ডিশন এটা বলা দরকার যে reptiles generally dinosaur got extincted, কিন্তু the exact cause of extinction is not known. এনসিআরটি লেখা আছে some say that they completely evolved into birds, লেখা আছে the truth lies somewhat in between, এটাও লেখা আছে. तो ये जो डिस्कशन था, और कुछ मिस तो नहीं हो गया? चलो डन हो गया. ये इसका फोटो ले लो सही से, एचडी फोटो भेज दे ग्रुप में, क्योंकि इसमें थोड़ा हेजी लग रहा है. आप लोग स्क्रीनशॉट मत लीजिए, तो ये फोटो एचडी फोटो ग्रुप में भेज देंगे. तो आशीष ग्रुपे सबाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है, ठीक है স্যার, আমি ওই আলাদা গ্রুপটাই আছি. হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি করে দিচ্ছি তোরা. দাঁড়া, चलिए नेक्स्ट. डन हो गया. अभी इसके बारे में सोचिए, এটা আমি মুখে মুখে বলছি फटाफट করে. एनसीईआरटी 138 देखो, उसमें सबसे पहली बात तो ये है, देखो उस पे कैम्ब्रियन जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स को बाएं तरफ खींच के आप कैम्ब्रियन लिख सकते हो, समझे ना? क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स को बाएं तरफ खींच के आप कैम्ब्रियन लिख सकते हो, और उसके ऊपर ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर्स, उसमें भी बाएं तरफ खींच के आप ऑर्डोविशियन लिख सकते हो, समझे ना? सो कैम्ब्रियन एंड ऑर्डोविशियन हैज नॉट बीन मेंशन्ड देयर, लेकिन सिलूरियन से मेंशन किया हुआ है ना? तो इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम सिलूरियन. तो कैम्ब्रियन हो गया, ऑर्डोविशियन हो गया, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन.
अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं। सबसे पहली बात तो यह है, ভালো করে গ্রাফটা দিকে তাকাও। सबसे पहली बात तो यह है the maximum diameter of the color, color করা আছে তো, তার যেখানে maximum diameter, that is the dominance of that particular plant। কি বললাম? যেখানে diameter is maximum সেটাই হলো dominance of that particular plant। am I clear? তাহলে যদি আমরা কার্বনিফেরা क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स और ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर्स এর মাঝখান থেকে চিন্তা করি, তা ट्रेकियोफाइट एंड क्लोरोफाइट के बीच में क्या आ रहा है? ब्रायोफाइट्स, তাই তো? তাহলে এই ব্রায়োফাইট যখন গেল, এই ব্রায়োফাইট দেখো কার্বনিফেরাসে গিয়ে ডাইলেট হতে শুরু করলো। এবার কার্বনিফেরাসে গিয়ে দেখো তোমার পারমিয়ান যখন চলে গেল, পারমিয়ানে দেখো डोमिनेंस ऑफ ब्रायोफाइट পাচ্ছ তো? एंड इक्वल डोमिनेंस में अभी भी प्रेजेंट है, देखो ऊपर जा रहे हैं विदाउट एनी डिक्रीज, তাই তো? তাহলে ब्रायोफाइट হয়ে গেল, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर्स और राइनिया टाइप ऑफ प्लांट्स के बीच से शुरू हो रहा है कौन? दैट इज ज़ोस्टेरोफाइलम। और ये ज़ोस्टेरोफाइलम आप ध्यान से देखिएगा कार्बोनिफेरस में जाके मैक्सिमम डायमीटर ले रहा है और उसी का रेडिएशन हो रहा है इन केस ऑफ कार्बोनिफेरस। देखा? इनटू आर्बोरेसन लाइकोपोड्स एंड हर्बेशियस लाइकोपोड्स। देखा आपने? हर्बेशियस लाइकोपोड अभी भी एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है विद इक्वल डोमिनेंस, जो कि परमियन से उसका डोमिनेंस शुरू हुआ, अभी भी प्रेजेंट है। वेरएज आर्बोरेसन लाइकोपोड्स का डोमिनेंस है परमियन में और उसका एक्सटिंक्शन भी परमियन में है। देखा आपने? মনে রাখতে হবে এগুলো, বুঝতে পেরেছো? এগুলো মনে রাখতে হবে, দিস आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद आप सोचिएगा जब फर्न्स के बारे में बात करोगे, अच्छा हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज इससे देखो, राइनिया के बाद तुम देखो ये आ रहा है, क्या कहते हैं उसको? साइलोफाइटॉन। तो साइलोफाइटॉन देखा आपने? साइलोफाइटॉन से 6 ओरिजिन है, 6 ओरिजिन है साइलोफाइटॉन से। सबसे पहले क्या ओरिजिन है? देखो फर्न्स। सेकेंड ओरिजिन क्या है? देखो जिंको। थर्ड ओरिजिन क्या है? कॉनिफर्स। फोर्थ ओरिजिन क्या है? इक्विजेटम, है ना? फिफ्थ ओरिजिन क्या है? निटेल्स, यस, नेक्स्ट है निटेल्स, और फाइनली आपका प्रोजिम्नोस्पर्म्स। तो देखो 6 खाना আছে। तो साइलोफाइटॉन से एग्जाम का क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, साइलोफाइटॉन से कितने ओरिजिन है, या तो किसका ओरिजिन, किसका प्रिकर्सर है साइलोफाइटॉन, ये क्वेश्चन है। तो 6 ओरिजिन साइलोफाइटॉन से होता है माय डियर, और ये हर एक 6 ओरिजिन का हर एक नाम आपको याद रखना है, नो इफ्स एंड बट्स। और मजे का बात देखिएगा, ये जितने भी उनमें से जितने भी जिम्नोस्पर्म्स है उसका डोमिनेंस देखिए, आइदर इन द जुरासिक और इन द ट्राइएसिक। देखो जितने भी जिम्नोस्पर्म है, साइकेट इज अ जिम्नोस्पर्म, साइकेट का डोमिनेंस देख, ट्राइएसिक जुरासिक में ही होगा 100%। तो जो भी फर्न्स छोड़ दो, जिंको बाइलोबा देखो, उसका भी डोमिनेंस देखो, शुरू हो रहा है ट्राइएसिक या जुरासिक से। देखा आपने? फिर साइकेट्स देखो, साइकेट्स तो बता दिया। कॉनिफर्स देखो, उसका भी डोमिनेंस देखो। तो जितने भी है माय डियर, 90% ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स का जो डोमिनेंस है वो सब ट्राइएसिक या तो जुरासिक में है। इसीलिए मैंने लिखा था, याद रखिएगा, जहां पे रेप्टाइल्स था, रेप्टाइल्स का डोमिनेंस जहां था वहां पे जिम्नोस्पर्म का डोमिनेंस शुरू हुआ। तो रेप्टाइल्स के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो रेप्टाइल्स में सबसे पहले डायनासोर इंपॉर्टेंट है। तो डायनासोर का डोमिनेंस कब है? जुरासिक में है, तो उस दौरान जिम्नोस्पर्म का भी डोमिनेंस है, समझे ना? तो ट्राइएसिक एंड जुरासिक के बाद क्रिटेशियस से एंजियोस्पर्म्स का डोमिनेंस आना शुरू हुआ। और एंजियोस्पर्म्स का जब डोमिनेंस देखो आप, प्रोजिम्नोस्पर्म से सीड फंड्स आया, सीड फंड से देख 2 चीज आया, एक तो है साइकेट्स और एक तो आया एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में देख सबसे पहले इसका क्या कहते हैं, डाइकॉट का है, उसके बाद मोनोकॉट का है। सो मॉडर्न डे इज द डोमिनेंस ऑफ द मोनोकॉट। आज के जमाने में डोमिनेंस ऑफ द मोनोकॉट इज इंपॉर्टेंट, তাই তো এইটা মনে রাখতে হবে, यू हैव टू रिमेंबर। और जनरलाइज करोगे उसमें पर्टिकुलर जिंको, फर्न, तुम्हारा इक्विजेटम, ये सब का ये नहीं करना है, लेकिन जनरलाइज करना है कि अगर जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करें तो जिम्नोस्पर्म का डोमिनेंस किस रीजन पे, किस पीरियड पे है, उसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, कम व्हाट में। यू कैन नॉट फॉरगेट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट। तो ये ग्राफ समझ में आ गया, डोमिनेंस किस तरह से समझना है, समझ में आ गया। तो टर्शियरी में जनरली द डोमिनेंस ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, और वो कौन सा एंजियोस्पर्म? डाइकॉट्स। क्वाटरनरी डोमिनेंस ऑफ द मोनोकॉट्स। तो याद रखना है आपको, ঠিক আছে না? তো এই সিকোয়েন্সটাকে মনে রাখবে। তাহলে একদম শুরু থেকে বলছি আমি আবার, একদম শুরুতে হচ্ছে তোমার যেটা তোমার ইয়ে ক্যাম্ব্রিয়ান, সেখানে চলে এলো তোমার কি ক্লোরোফাইট অ্যানসেস্টার্স, তারপরে আসছে ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर्स, देन राइनिया टाइप ऑफ प्लांट, देन साइलोफाइटॉन। क्लोरोफाइट एंड ट्रेकियोफाइट के बीच में शुरू हो रहा है ब्रायोफाइट्स, और उसके ट्रेकियोफाइट एंड राइनिया के बीच में शुरू हुआ है ज़ोस्टेरोफाइलम, वो डाइवर्सिफाई कर रहा है ना, इन कार्बोनिफेरस इनटू आर्बोरेसन लाइकोपोड्स एंड हर्बेशियस लाइकोपोड। आर्बोरेसन लाइकोपोड डोमिनेंट हो रहा है इन पर्मियन एंड एक्सटिंक्शन इन द पर्मियन, हर्बेशियस लाइकोपोड डोमिनेंट इन द पर्मियन एंड अभी भी उसका डोमिनेंस इक्वली है ना। और उसके साथ साथ अभी आ गया साइलोफाइटॉन। साइलोफाइटॉन से 6 ओरिजिन है, 6 ओरिजिन का नाम आपको याद रखना है। उसके साथ हर एक ओरिजिन का मोटा मोटी डोमिनेंस कहां पे है वो याद रखना है। वो बेसिकली आइदर इन द ट्राइएसिक और इन द जुरासिक है, एक्सेप्ट फॉर द जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा तो ऊपर गিয়ে, তাই তো? ক্রিটেশিয়াসের মতো, ক্রিটেশিয়াস না জিঙ্কো বাইলোবা, দেখতো ডমিনেন্স, হ্যাঁ ঠিকই বলেছি, জিঙ্কো বাইলোবা ডমিনেন্স
और नीटेल्स, अच्छा नीटेल्स, आई एम सॉरी, तो नीटेल्स का जो डोमिनेंस है वो क्रिटेशियस, ठीक है। Am I clear to everyone? ध्यान से देख इसको, ठीक है ना। এখান থেকে একটা কোশ্চেনের কথা বলবো, 2017 কেভিপিওয়াই, 2017 केवीपीवाई একটা বিখ্যাত क्वेश्चन আছে। সেই क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो किस तरह से आप आंसर करोगे ये भी देख लेना, मैं बता रहा हूं आपको। would you find assertion যদি আমি করি, ঠিক আছে, বা assertion আমি এরকম ভাবে করলাম কি হ্যাঁ, ফসিল assertion লেখ একটা, কোথায় লিখবি, এনসিআরটি তে লেখ, এনসিআরটি তে, বই খাতায় লিখে কোনো লাভ নেই, পড়বি না খাতা পড়ার পরীক্ষার আগে, গোড়া 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 একটা কাজ কর, ওই উপরে লেখ, পেজ নাম্বার 140 এর উপরে ফাঁকা আছে, 140 এর উপরে ফাঁকা আছে, নেই, नीचे আছে, যেখানে ওই লেখ assertion লেখ একটা। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप एक assertion लिखिए पेज नंबर 140 के ऊपर, अगर पॉसिबल हो तो, माने 124 के ऊपर नया बुक में, तो उस पे देखिए, उस पे assertion लिखिए, फॉसिल ऑफ बैम्बू, fossil of bamboo will not be present along with the fossil of dinosaur। ये assertion है, ये सही है या गलत है पहले ये बताइए, और अगर इसका रीजन करना है तो इसका रीजन क्या होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसका रीजन अगर डिटरमाइन करना है तो उसका रीजन क्या होगा माय डियर, बताइए। इसका रीजन क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चंस, फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि बैम्बू कौन सा टाइप ऑफ प्लांट है, इट्स अ मोनोकॉट, बैम्बू इज अ मोनोकॉट। तो और डायनासोर का एक्सटिंक्शन कब हुआ, 65 मिलियन ईयर, क्रिटेशियस। मोनोकॉट तो क्वाटरनरी में है, तो डायनासोर का फॉसिल में मोनोकॉट कैसे आएगा। डेफिनेटली assertion is true, उसका रीजन के बारे में मैं बोल रहा हूं। बैम्बू इज अ मोनोकॉट, है ना, जिसका ओरिजिन कब है, इन द क्वाटरनरी, so it's not possible for monocot, fossil of monocot to represent the fossil of dinosaur which extincted in Cretaceous। बुझते पेरेছো, ये है आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप डिटरमाइन करना चाहते हो तो इसी तरह से उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये आंसर नहीं कर सकते। तो लिख लो उसका रीजन, बैम्बू बीइंग ए मोनोकॉट will not be found in the fossil of dinosaur which extincted in Cretaceous। क्योंकि मोनोकॉट का जो ओरिजिन है वो है क्वाटरनरी, है। तो मोनोकॉट कहां से आया, डाइकॉट से। डाइकॉट कहां से आया, सीड फंड से। सीड फंड कहां से आया, प्रोजिम्नोस्पर्म से। प्रोजिम्नोस्पर्म कहां से आया, साइलोफाइटोन से। साइलोफाइटोन कहां से आया, राइनिया टाइप ऑफ प्लांट से। वो कहां से आया, ट्रेकियोफाइट से। वो कहां से आया, क्लोरोफाइट से। বুঝতে পারলে, এইভাবে পড়তে হবে, ঠিক আছে। और वो सीड फंड्स के बारे में बात करेंगे तो दो आता है माय डियर, एक तो है साइकैड्स और एक तो है डाइकॉट्स। बुझते पेरेছো, ये आंख घर में जब घुसते हो तो लाइट जलाने के लिए स्विच बोर्ड देखना पड़ता है आपको, देखना नहीं पड़ता है ना। तो एनसीईआरटी उस तरह से देख सकते हो क्या, अगर एनसीईआरटी उस तरह से नहीं देख सकते हो तो नहीं होगा, समझ लो, ठीक है। बुझाते पारलाम, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर जो भी डिस्कशन करना था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और ये डिस्कशन जो आज मैंने किया इसका डेट भी लिख लीजिए, आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग भी रहता है, तो रिकॉर्डिंग में आज का डेट मार्क कर दीजिएगा और आप इसको बार बार देखोगे। एग्जाम से 7 दिन पहले जरूर इसको एक बार देख लेना। ये जो रिकॉर्डिंग आज मैंने दिया, इस रिकॉर्डिंग को जरूर फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम से 7 दिन पहले एटलीस्ट एक बार देख लेना, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम, है ना। इस बार प्रोटेरोजोइक मेंशन किया गया था नीट में, तो प्रोटेरोजोइक अगर नीट में मेंशन किया गया था, इस बार तो क्वेश्चन इजी था, मैंने एकदम लल्लू पेपर था, लेकिन डेफिनेटली इसमें गड़बड़ है। इस बार अगर सवाल पूछा जाएगा और एनालिटिकल क्वेश्चन अगर इससे पूछा जाएगा तब तो गए, तो उस पर आंसर करने के लिए ये नॉलेज जरूरी है, इसीलिए हमने डिस्कशन करा, समझे ना। चलिए, क्रोकोडाइल एकदम याद रखना है, क्रोकोडाइल कब आया, पर्मियन में आया, है ना। और क्रोकोडिलिया कहां से आया, थेकोडॉन से आया, इन द पर्मियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा, है तो रे। क्रोकोडाइल থেকে ডাইনোসর কখন এলো, ট্রায়াসিক, এইটা খেয়াল রাখতে হবে,
Snakes, I don't believe snakes and tuatara will be the question. I don't believe. Permian tuatara এলো, snakes এলো তোমার ইয়েতে ট্রাইয়াসিকে, তো এগুলো আমি বিশ্বাস করি না আসবে। কিন্তু डेफिनेटली डायनासोर रिलेशन विथ क्रोकोडिलिया, क्योंकि क्रोकोडाइल से डायनासोर आया, यही यूनिकनेस है। क्योंकि टायरानोसोरस अगर आप देखोगे उसका जो फेस है वो तो एकदम क्रोकोडाइल जैसा है, বুঝতে পেরেছো? सो क्रोकोडाइल से ही डायनासोर आया। क्रोकोडाइल सक्सेसफुल रहा लेकिन डायनासोर सक्सेसफुल नहीं रहा, क्यों? क्रोकोडाइल से ही डायनासोर आया। अगर ये क्वेश्चन मैंने पूछा, एजर्शन क्रोकोडाइल से ही डायनासोर का ओरिजिन है, डायनासोर ओरिजिन फ्रॉम द क्रोकोडिलिया, but dinosaur did not got extincted, but crocodilia is still the most dominant ये की बोले reptile। why कितना इजी क्वेश्चन है, बोलो। মারবো চর। ডাইনোসরের কি ক্লিডোইক এক জেল লাইক এক্স ছিল? বল অনলাइन स्टूडेंट्स बताइए। वेरी इजी सर, शॉर्टेज ऑफ फूड। शॉर्टेज ऑफ फूड, डायनासोर शॉर्टेज ऑफ फूड। बाबा क्रोकोडिलिया हैज अ 4 चेम्बार्ड हार्ट, क्रोकोडिलिया हैज अ 4 चेम्बार्ड हार्ट, বুঝতে পেরেছো? ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিজন ক্রোকোডিলিয়া সাকসেসফুল কেন, এই জন্যই তো। শর্টেজ অফ ফুড ছেড়ে দে, ও তো মিটিওর এসেছিল, ধ্বংস হয়েছিল, অনেক কিছু হয়েছিল, ছেড়ে দে, সেগুলো তো আছেই। বাট ক্রোকোডিলিয়া সাস্টেন করে গেল, ডাইনোসর করলো না। প্রথমত বিগ সাইজ এবং তোমার হার্টের ক্যাপাসিটিটা কম ছিল না, চেম্বার কম ছিল না। एनीवे, तो चलो ये हो गया। अच्छा, एम्फिबियन सक्सेसफुल क्यों था? व्हाई वर एम्फिबियंस लैंड एंड वाटर केन छिलो? व्हाई डिड दे रिक्वायर वाटर? फॉर ফার্টিলাইজেশন ছিল, কিন্তু দে লেড জেল লাইক এগস। যদি সেটা ল্যান্ডে লে করতো তাহলে দে উড হ্যাভ ড্রাইড আপ ইন দ্য সান, তো দে লেড জেল লাইক এগস। इसीलिए एम्फिबियंस had to go to water to lay the eggs because sunlight will not reach। बुझते पारछो? So this is very important। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के रेफरेंस पे जो भी हमने डिस्कस करा इसको जरूर पढ़ लेना बेटा, है ना। चलो आज का डिस्कशन तो खत्म हो गया, हम लोग डिस्कशन फिर से करेंगे, कल डिस्कशन करेंगे आपका, इसी को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ये वाला हो गया, बाकी एविडेंस एवोल्यूशन निपटा देंगे कल। चलो, थैंक यू।